بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد. دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ قرآن کریم اس جہان میں وہ بے بہا نعمت ہے کہ سارا جہان، آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنی کوشش بھر اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش اس بات میں کرنا کہ قرآن کریم میں اپنے آپ کو مشغول کر لے اور اس کو حاصل کرے، اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس سے اعراض کرے، یعنی منہ موڑ لے اور اس سے چھوڑ دے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو الفاظ کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی خود بھی صحیح کر کے پڑھے اور اپنی اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو سکے اس کے معانی اور احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کو عمر بھر اپنا وظیفہ بنا لے، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہان کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن اسی صورت سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی صورت سے شروع ہوتی ہے، اور آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی جو مکمل صورت وہ یہی نازل ہوئی ہے۔ اس کو اس جو سورہ اقرا ہے، سورۃ العلق جس کو بولتے ہیں، جس میں آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یا سورۃ المزمل ہے یا سورۃ المدثر ہے، اس کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، لیکن مکمل صورت سب سے پہلے یہ سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ جو صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی صورت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مکمل طور پہ پوری صورت سب سے پہلے یہی نازل ہوئی ہے۔ ان کا مطلب بھی غالباً یہی ہے کہ اس سے پہلے پوری صورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس صورت کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، تشریح ہے۔ چاہے اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور نیک نیک اعمال پر مشتمل ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول جو ہے وہ اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورت کا نام ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، اور ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ نام بھی احادیث میں آئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے اس کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر، یعنی جو بھی اس کے پہلے جو خیالات کچھ بھی ہیں ان سے ذہن کو اپنے کو خالی کر کے خالصتاً حق کی طلب اور سیدھے راستے کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت کی پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے۔
जो सूरह अलिफ लाम मीम यानी सूरतुल बकरा से शुरू होता है। गोया इंसान ने जो अल्लाह ताला से सीधा रास्ता तलब किया था, उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताबु, जो आगे वाली सूरत है, उसमें फरमाकर ये इशारा कर दिया कि जो तुम मांग रहे हो वो इस किताब में मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि सूरह फातिहा जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई है, ना इंजील में, ना ज़बूर में, और ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इस जैसी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा हर बीमारी के शिफा है, हर बीमारी से शिफा है। सूरह फातिहा का नाम हदीस में सूरह शिफा भी आया है। और सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से ज़िक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में से सबसे अजीम तरीन सूरत ये सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली है। आगे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान में सूरह नमल आती है 19वें पारे में। ये उस सूरत का जुज है, यानी ये आयत उस सूरत का एक हिस्सा है। और इस पर भी इत्तेफाक है सबका के सिवाय सूरत तौबा के जो 10वें पारे में आ रही है, इसके अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लाजमी लिखी जाती है। और इस बात में आइम्मा मुजतहिदीन का इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाह जो है वो सूरह फातिहा या तमाम सूरतों का हिस्सा है या नहीं। हम क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मसलक के हैं, तो उनके मसलक में ये है कि बिस्मिल्लाह सिवाय सूरह नमल के और किसी सूरत का जुज नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरत के शुरू में दो सूरतों के दरमियान फासला करने और इम्तियाज जाहिर करने के लिए नाजिल हुई है, यानी फ़र्क करने के लिए कि यहाँ से ये सूरत ख़त्म हो गई है, अब नई सूरत शुरू हो रही है। अहले जाहलियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। उस जाहलियत वाली रस्म को मिटाने के लिए कुरान की सबसे पहली आयत जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, उसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया, जो सूरह अलक है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, के पढ़ो तुम अपने रब के नाम के साथ। अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ने फरमाया कि कुरान के अलावा दूसरी तमाम आसमानी किताबें भी बिस्मिल्लाह से शुरू की गई हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान और इस उम्मत की खासियत है। तो दोनों कौल आपस में इस तरह मुताबिकत हो सकती है कि अल्लाह के नाम से शुरू कर तो तमाम आसमानी किताबों में शुरू किया गया है, लेकिन ये बिस्मिल्लाह वाले अल्फाज जो हैं ये सिर्फ इस कुरान की खसूसियत है। जैसा कि बाद रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शुरू में हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया करते थे। वो फरमाया करते थे बिस्मिकल्लाहुम्मा, कि अल्लाह आपके नाम के साथ शुरू करता हूँ, सिर्फ इतना। और यही लिखा करते थे। लेकिन जब से आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अल्फाज को इख्तियार फरमा लिया और हमेशा के लिए यही सुन्नत जारी हो गई। कुरान करीम में जगह जगह इस बात की हिदायत है कि हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कोई भी काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया गया हो वो बेबरकत होता है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, लाइट बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन ढांपो तो बिस्मिल्लाह कहो,
खाना खाओ, पानी पियो, वुजू करो, सवारी पर सवार हो, उतरते सवारी से उतरो, हर वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने की हिदायत आई हैं, कुरान और हदीस में बार बार आई हैं। अब इस्लाम ने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने की हिदायत देकर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख अल्लाह ताला की तरफ इस तरह फेर दिया है कि वो कदम कदम पर इस हलफ वफादारी की तजदीद करता रहे कि मेरा वजूद और मेरा कोई काम बगैर अल्लाह की मशीयत और इरादे और उसकी इमदाद के नहीं हो सकता, जिसने इसकी हर नकल और हरकत और तमाम मुआशी और दुनियावी कामों को भी एक इबादत बना दिया है। अमल कितना मुख्तसर है कि ना इसमें कोई वक्त खर्च होता है ना मेहनत, और फ़ायदा कितना बड़ा है कि दुनिया भी दीन बन गई। एक काफिर भी खाता पीता है और एक मुसलमान भी खाता पीता है, मगर मुसलमान अपने लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह कहकर ये इकरार करता है कि ये लुकमा ज़मीन से पैदा होने से लेकर पक कर तैयार होने तक आसमानों ज़मीन और सैयारों और हवा और फ़ज़ाई मखलूक़ात की ताकतें, फिर लाखों इंसानों की मेहनत सरफ होकर तैयार हुआ है, इसका हासिल करना मेरे बस में नहीं था। ये अल्लाह की ज़ात है जिसने इन तमाम मराहिल से गुजार कर ये लुकमा या घूंट मुझे अता फरमाया है। मोमिन और काफिर दोनों सोते जागते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, मगर हर मोमिन सोने से पहले और बेदार होने के वक़्त अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के साथ इसी तरह अपने राब्ते की तजदीद करता है, जिससे तमाम दुनियावी और मुआशी ज़रूरतें अल्लाह का जिक्र बनकर इबादत में लिखी जाती हैं। मोमिन सवारी पर सवार होते हुए बिस्मिल्लाह कहकर गोया कि ये गवाही देता है कि इस सवारी का पैदा करना या मुहैया करना, फिर इसको मेरे कब्ज़े में दे देना, ये इंसान की कुदरत से बाहर की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के बनाए हुए निज़ाम मुहकम का ये काम है कि कहीं की लकड़ी, कहीं का लोहा, कहीं की मुख्तलिफ धातें, कहीं के कारीगर, कहीं के चलाने वाले, सब के सब मेरी खिदमत में लगे हुए हैं। चंद पैसे खर्च करने से इतनी बड़ी अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक जो है, उसकी मेहनत को हम अपने काम में ला सकते हैं। और वो पैसे भी हम अपने साथ कहीं से नहीं लाए थे, बल्कि उसके हासिल करने के तमाम असबाब भी उसी के पैदा किए हुए हैं। गौर किया जाए कि इस्लाम की सिर्फ इसी एक ही मुख्तसर सी तालीम ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि बिस्मिल्लाह एक बहुत बड़ा नुस्खा नुस्खा है, जिससे तांबे का नहीं बल्कि खाक का सोना बनता है। फलिल्लाहिल हम्दु अला दीनिल इस्लामी व तालीम ही, इस पर अल्लाह की हर किस्म की तारीफ होनी चाहिए। अब मसला यह है कि कुरान की तिलावत शुरू करते वक़्त चाहे वो कहीं से भी शुरू करें, सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। ये तो एक हो गया। और तिलावत के दरमियान में अगर कोई सूरत शुरू हो जाए, सवाए सूरत तौबा के जो 10वें पारे में है, उसके अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है।